ठीक है ना। तो अब मैं इसी से शुरुआत कर सकता हूँ, हो गया ना। नाउ just I have mentioned here, this is the vertical column, this is the horizontal column. So I am going to explain with the examples, because it is written from 0 to 99. Question will not be asked from 0 to 99. In question there will be 4 blocks, 5 blocks. So first understand how horizontal numbers or numerals are written. Just see here. Just say horizontal numerals are numbers. The teacher should ask the students to write. So what can be the question? The question should be from the students, not from the students. Student should ask, or teacher should ask the student that write numbers from 1 to 5 in horizontal way, in horizontal column. Just say it is a question. So how the student should write? Answer. Very simple. First 1, 2, 3, 4, and 5. This is a horizontal column. And it is single digit. Suppose again ask, write numbers in vertical column from 1 to 5. So answer should be like this: 1, 2, 3, 4, 5. This is the answer. So now it is up to the teachers to give for practice. For example, suppose teacher should ask the student to write in a horizontal column from 21 to 26. So he should write 21, 22, 23, 24, 25, 26. In a vertical column, 21, 22, 23, 24, 25. So many questions can be found out of this block for class 1 student. So he or she should have a practice, and they should not forget horizontal column and the vertical column. Now, another important point, generally it is asked on the higher classes, maybe 3rd or 4th, even from the 2nd itself, how many single digit are? How many single digit are? So count it. 0 is not a natural number. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
So you can say that the total number of one digit, total number of one digit is equal to 9. See here, there is a very beautiful combination of all these things. Then obviously second question comes, what is the total number of two digits? So two digit starts from 10 and goes up to 99. Count it, you will find it is 90. So total two digit number, total number of two digit is equal to 90. अब काउंट करिएगा, समय ज़्यादा लगेगा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 67 68 69 7 और ये 70 आ जाएगा, ये 80 आ जाएगा और ये 90 आ जाएगा. अब देखिए, अगर आप हर क्लास में मैथ पढ़ा रहे हैं और कोई क्वेश्चन पूछ दे कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ थ्री डिजिट, तो जानते क्या करना है? बस क्या करना है कि 9 के सामने 2 शून्य बढ़ा देना, वो 900 होगा. जो है 4 डिजिट कितना होगा? तो 9 के सामने 3 डिजिट बढ़ा देना. लेकिन यहाँ पर मैं नहीं बढ़ाऊंगा क्योंकि ये क्लास 1 का है, ये टीचर्स के लिए मैं बता रहा हूँ. उनको जिसे बार बार, जैसे मैंने काउंटिंग किया समय लगा, वो काउंटिंग केवल एक बार बता देंगे तो आगे बताने की जरूरत नहीं है. हायर क्लासेज में केवल यही बता दें और सिमिलरली लिख दें कि 3 डिजिट 900 होगा, 4 डिजिट 9000 होगा. समझ में आ गया? अब देखिए, अब इसके बाद जो है इसी टेबल को यूज मैं कर रहा हूं. यहां पर मैं मिटा दे रहा हूं, इसको इरेज कर दे रहा हूं, जिससे कि हमारा जो है वो और बढ़िया और चीज़ में मैं बता सकूं. अब एक टर्म मैं लिखाऊंगा जो प्रीवियस लेक्चर में हम बताऊंगा कि बिफोर का मतलब क्या होता है, आफ्टर का मतलब क्या होता है और बिटवीन का मतलब क्या होता है. तो मैं कोई बस जस्ट एक वो सैंपल ले रहा हूँ, ये कह रहा हूँ, ये अगेन मैं बोल्ड करके बता रहा हूँ आपको कि ये हमने बॉक्स में 3 नंबर दिया है. और ये देखिए बॉक्स क्या है, 10 11 12 में ले रहा हूं. सिंपल, कोई 3 डिजिट ले सकते हैं. 10 11 12 इनमें से कोई 3 डिजिट ले सकते हैं. सिंगल डिजिट भी ले सकते हैं, डबल डिजिट भी ले सकते हैं. हर क्लासेस में 3 डिजिट लिया जाता है. अब देखिए, अब इसमें कहा जाए, इसमें क्या है, 10 बिफोर 11. अब बिफोर लिखने के लिए आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, 10 इज बिफोर 11. इसको आफ्टर भी बोलते हैं, नहीं ये बैकवर्ड बोलते हैं. और फिर एक आपको जो साइन दिया था ग्रेटर स्मॉल का, तो इसको लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10 इज लेस देन 11. सो बिफोर एंड बैकवर्ड इज द सेम. बिफोर का साइन आप ये भी लिख सकते हैं. दूसरा जो देखिए आफ्टर,
अब यही ले लीजिए, इसी साइन को लिख लीजिए, इसी नंबर को ले लीजिए, कोई दूसरा नंबर लेने की जरूरत नहीं है। 10, 11, 12। तो अब यहाँ पर 12 जो है आफ्टर 11 है, सो यहाँ पर लिख सकते हैं 12, यहाँ पर थोड़ा लगा देंगे तो ये थोड़ा अच्छा रहेगा। 12 आफ्टर 11, साइन यही रहेगा। अब साइन क्या रहेगा, ये 11 यहाँ हो जाएगा और यहाँ पर 12 हो जाएगा। बात समझ गया ना? बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो है। फिर आफ्टर को फॉरवर्ड भी बोलते हैं। ये सब बाद में आप देखेंगे आराम से। इंक्रीजिंग भी हो रहा, इधर इंक्रीजिंग हो रहा, डिक्रीजिंग हो रहा। फिर बिटवीन एक वर्ड आता है, बिटवीन। इसको थोड़ा मतलब डिटेल में लिख रहा हूं। फिर वही 3 नंबर लिखिए, 10, 11, 12। तो अब ये जो नंबर है ये बिटवीन है, बिटवीन एक ही होता है, जिसको हिंदी में कहेंगे बीच में। लड़के खड़े हैं, बीच में ये लड़का है। अब इसको लिख सकते हैं कि 11 इज बिटवीन 10 and 12। अब जब एक ही नंबर है तो इसको ओबियसली, पहले मैं बाद में बताऊंगा, पहले यहाँ बता दे रहा हूँ, याद आ गया है यहाँ पर कि 11 इज इक्वल टू 11। इसको क्या बोलते हैं, इक्वल टू। क्योंकि क्लास 1 में इक्वल सिंबल क्या है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और इक्वल। ये 5 साइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपको यूज करने के लिए। जब इक्वेशन फॉर्म होगा तो भी इसके यूज होता है। फिर ग्रेटर देन, जो हमने यहाँ पर बताया, ये जो चोंच है, जो आदमी का मुंह खुलता है वो, तो चोंच ये आपका जो बड़ा होता है, और ये टेल जब मुंह बंद होता है तो छोटा होता है। तो छोटा से बड़ा जाएगा तो करेंगे, तो यही इसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। इसका नाम होता है GREA, ग्रेटर देन। अब कहेंगे कि 11 इज ग्रेटर देन 10। यहां पर 12 इज ग्रेटर देन 11। ठीक से लिख लीजिएगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।